Good evening. Hello, everybody. Good evening. Hello, everybody. Good evening. Hello, Akash. Ninad, good evening. Jai Shri Ji, good evening. Hi, Sneh. Nice to see you every day. Ishwar Ji, Beena, good evening. Good evening, everybody. And a very, very warm welcome to day 15. Hi, Nishad. Hello, Ramesh. Good evening, Lakshmi Ji. Hi, Beauty. Triveni Ji. Rajendra. Rajan. Hi, Rajan. Nice to see you. Suresh. Good evening to everybody. And a very, very warm welcome. We just wait for 2 more minutes. Yes, thank you, Beena. Hello, Shravanti. Nice to have you on our workshop. Hello, Kanchan. Shalu, hello. Good evening. Hello, Deepak Ji. How are you, Beena Ji? Sunita, Pandurang Ji, how are you? कैसे हैं सब लोग? How is everybody doing this evening? I hope everybody is fine. Making best use of the lockdown. Hello, Ishma. Hello, Vipin, Mangaji. Geeta, hello, how are you? Jigna. Great. Once again, wishing all of you a beautiful evening. Yes, Pandurang, thank you so much. It's my honor and my pleasure to be with all of you every evening. Kripa Shankar Ji, namaste. Kripa Shankar Ji is saying feeling fine and exciting. Hello, Himanshu, Momita. Good evening, Rajni. Padma, Radha Ji. We just wait for 1 more minute. I hope everybody is practicing the daily rituals. कितने लोग ग्रैटिट्यूड लिखते हैं? कितने लोग रोज टैपिंग करते हैं? I hope everybody is following the processes. Good evening, Sanjeev Ji. Yes, thank you, Jai Shri Ji. She's saying we look forward to your session every day. Hello, Nilesh Bhai. Hello. Mansha, how are you? Nishad is saying, yes, gratitude and tapping. Good. Gratitude is the highest frequency in the universe. So the best thing is that whatever gratitude का सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कि लाइफ में कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन देयर आर ऑलवेज अ फ्यू थिंग्स, ऑलवेज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर विच वी कैन बी ग्रेटफुल. कितनी भी परेशानी वाली सिचुएशन हो, लेकिन हमारे ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं. और जैसे आप ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में आते हैं तो
चीज़ें बदलनी शुरू होती है. So that is why the most beautiful thing that you can teach anybody or teach yourself is to always be in the state of gratitude. हर परिस्थिति में थैंकफुल होना, मेरे हिसाब से अगर ये किसी ने सीख लिया तो people can create miracles in their life. I have one student, his name is Himang Bhatt. I don't know if he is online. Himang is the CEO of this chain of juices called Has Juices. He has got a lot of Has Juice stores in a lot of malls in Mumbai, Pune. बहुत जगह पे उनके जूस काउंटर्स है, फ्रेश जूस करते बेचते हैं वो. He has a chain of these juice centers. तो एक बार वर्कशॉप में आए थे दूसरों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने, तो मैं उनको कहता था, मैं उनको पूछ रहा था, आई वॉज आस्किंग हिम, Himang, what is that one practice which has made such a big difference to your life? Because his business is growing leaps and bounds. And he is always free. वो हमेशा फ्री रहता है, हमेशा खुश रहता है, अपना काम करते रहता है. आपको लगेगा भी नहीं कि ये इंसान इतने बड़े जूस चेन का इतना बड़ा आदमी होगा. Like he is such a big man and yet so humble, so polite and all of that. And he says, sir, the only one practice that I follow always is to be in the state of gratitude every single moment. So I told him, how do you practice gratitude? What is the level of depth that you go into? तो मुझे कहता है, उसने उस दिन वो सूट पहना था, तो उसने कहता है, सर, you know the stitch which is holding my suit together, there is the stitch which is holding the suit together. I am even grateful to that stitch. क्योंकि अगर वो स्टिच नहीं होता तो आज मेरा सूट फटा हुआ होता और मैं आपके सामने यहाँ पे अच्छे से खड़े नहीं रह सकता था. सो आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू दैट स्टिच विच होल्ड्स माई सूट टुगेदर. नाउ इमेजिन द लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड ही इज फॉलोइंग. Grateful for every single thing in his life, and that is why he is always happy. He is always, growing his business leaps and bounds. So I feel that if you practice that one thing every single day in your life, एक भी दिन भूलना नहीं है. अगर हम बच्चों को भी सिखा दे, पहले से बचपन से ही सिखा दो बच्चों को, लर्निंग हाउ टू बी ग्रेटफुल, you will see these children will never complain. They will never complain about not having something in their life. They will never complain about उसके पास ये है मेरे पास नहीं है. ये जो पीयर प्रेशर का जो चक्कर है ना आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों में, वो निकल जाएगा. बिकॉज दे आर ग्रेटफुल फॉर वट एवर दे हैव इन देयर लाइफ. और जो लोग ग्रेटफुल होते हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात क्या है पता है? उनके लाइफ में अच्छी चीज़ें आते रहती है, उनको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. और जो लोग कंप्लेन करते रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके लाइफ में जो होता है वो भी चले जाता है. या बिकॉज you know what God says, if you're not grateful for what I have already given you, then can you really expect more from me? But if you are grateful for whatever I have given you, then I am happy to give you more. So जब हम gratitude में आते हैं तो हम God को कह रहे कि God तूने मुझे जो भी दिया है उसके लिए I am really grateful. तो गॉड को भी तो मन करता है कि जो बच्चा इतना ग्रेटफुल है मैंने जो दिया है उसके लिए, तो मुझे उसको ज़्यादा देना चाहिए. अगर हम कंटिन्यूसली कंप्लेन करते रहे, ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है, लोग ऐसे होते हैं, ये गवर्नमेंट ये रास्ते ख़राब है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो अनफॉर्चुनेटली वी आर इन अ कम्प्लीटली रॉन्ग वाइब्रेशन. That doesn't mean that you should not fix problems. I am not saying कि problems को ignore करो, problems के लिए alert रहो, problems को solve करो, सब कुछ करो, लेकिन always be in the state of gratitude. This is one exercise which can completely transform people's lives. I'll give you one simple example जिससे gratitude से एक इंसान की ज़िंदगी कैसे बच गई. देखो, एक इंसान थे जिसका नाम था विपुल भाई. अभी उसका फुल नेम तो मुझे पता नहीं. उनका एक दिन फ़ोन आया मुझे और विपुल भाई मुझे कहने लगे कि सर, आई एम रियली सिक एंड टायर्ड ऑफ माई लाइफ. मैंने सब कुछ कोशिश कर लिया, जितना हो सके मैंने किया, कुछ हो नहीं रहा है, तो आई एम जस्ट वांटिंग टू कमिट सुसाइड. तो सबसे पहले मैं तो उनको जानता भी नहीं था, तो मैंने उसको पूछा कि विपुल भाई आप हो कौन, मुझे बताओ. सर नहीं, बस आई हैव हर्ड अबाउट यू एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, आई वांटेड टू टेक सम हेल्प. बस मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी दे दूं. तो मैंने उनको पहले तो ये कहा कि विपुल भाई आप मेरी बात सुनने वाले तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर बात करके क्या फ़ायदा.
तो उन्होंने कहा नहीं 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 सर, आप मुझे बताइए, बस कुछ तो बताइए जिससे कि मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो व्हाट आई डिड इज आई टोल्ड हिम, विपुल भाई, डू वन वेरी सिंपल थिंग, एक नोटबुक खरीद के लेके आओ मार्केट में से, और कल सुबह से उठ के जब भी आप उठते हो तो आपको सबसे पहले ये लिखना है कि आप किस चीज़ के लिए परमात्मा के आभारी हो। क्या ऐसे आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ है जिसके लिए आप आभारी हो? मैंने उनको क्वेश्चन पूछा तो वो कहते हैं हाँ सर, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरा घर है, मेरा बॉडी अभी तक चल रहा है, मैं फिट हूँ, मैं फाइन हूँ, मेरा माइंड भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने कहा देखो, एटलीस्ट यू आर ग्रेट, यू हैव सो मेनी थिंग्स ना, तो स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। तो मैंने उसको कहा 15 दिन तक इसको फॉलो करना, उस उतने 15 दिन के अंदर सुसाइड की सोचना भी मत, 15 दिन इसको फॉलो करो और उसके बाद मुझे फ़ोन करना, उसके पहले फ़ोन मत करना। ही सेड सर डन, आई विल डू इट। तो घर पे गया, मतलब उसने वो एक बुक खरीद के लेके आए होंगे और उन्होंने पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया, और फिर वो भूल गए और मैं भी भूल गया फ़ोन करना। तो कुछ महीनों के बाद मेरा एक वर्कशॉप था, सेमिनार था मेरे हिसाब से, फ्री सेमिनार। तो पीछे से एक इंसान आके मुझे टैप करने लगे ऐसे। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उनका चेहरा तो मैं पहचान नहीं पाया। तो मैंने पूछा कि सर आप कौन? तो कहते सर वो विपुल भाई याद है, मैंने आपको फ़ोन किया था एक दिन, मैंने कहा था कि आई वांट टू कमिट सुसाइड। तो एक चीज़ की तो तसल्ली हो गई कि उन्होंने सुसाइड कमिट नहीं किया था, बिकॉज ही वॉज राइट देयर एंड बिहाइंड मी। सो ऐसे विपुल भाई कैसे चल रहा है सब कुछ? कहते हैं कि सर जिस दिन से मैंने वो ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू किया, मेरी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट गॉड हैज़ गिवन मी सो मच and there is really no reason to complain, and that is why he basically started seeing and he started even attracting good things in his life। और कहते कि सर करीब करीब 40 दिन के अंदर तो मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई, completely turned around। I says thank you so much sir। कि आप सोचिए, the practice of gratitude can turn around a person who's on the verge of committing suicide, so imagine how powerful this exercise must be। okay? तो अगर हम जितना भी ये इतने दिन हम साथ में निकाल रहे हैं 21 डेज, उसमें से अगर एक प्रैक्टिस, वन प्रैक्टिस विच आई डोंट वांट यू टू फॉरगेट थ्रू आउट योर लाइफ इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो उसके लिए एक अच्छी सी नोटबुक लेनी है और उसमें एवरी डे यू गोइंग टू राइट ग्रैटिट्यूड फॉर 7 to 10 minutes। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं सर माइंड में कर दिया तो चलेगा? तो मैं कहता हूँ नहीं, नहीं चलेगा, यू विल हैव टू राइट इट डाउन। तो कहते सर वाई, यू नो आई वॉन्ट टू डू इट इन माई माइंड। आई सेड योर माइंड वॉन्ट बी एबल टू स्टे देयर इवन फॉर 7 minutes। द मोमेंट यू से थैंक यू गॉड फॉर दिस डे, आई एम सो ग्रेटफुल कि तूने मुझे आज का दिन दिया, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट द माइंड विल से आज का खाना कौन पकाएगा? फिर आप वापस कहोगे थैंक यू सो मच गॉड, आई हैव दिस वंडरफुल बॉडी, फिट एंड फाइन बॉडी, आज बच्चों को स्कूल में छोड़ने कौन जाएगा? So the problem with the mind is it is such a monkey mind that it won't stay there even for 7 to 10 minutes। तो आपको क्या करना है, इसलिए लिखना ज़रूरी है। और जब भी आप लिखते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड और हाथ का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, मैंने आपको कल ही बताया था, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। सो डू नॉट लूज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ग्रैटिट्यूड। ओके, उसमें कोई भी बहाना चलता नहीं है। आप ट्रैवल कर रहे हो तो साथ में ले चलो अपनी ग्रैटिट्यूड बुक, प्लेन में बैठ के लिखो, कौन पूछता है आपको? Yeah, the other way of doing gratitude is to record it। ये पूरे स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करिए और फिर उसको कान में लगा के ऑडियो सुनिए। सम पीपल आर ऑडिटरी, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, एंड दे आर बेसिकली यू नो पीपल हु लाइक टू हु गेट एक्टिवेटेड थ्रू दी ऑडियो सेंसेशंस। तो उनके लिए ऑडियोज अच्छा रहता है। तो आंखें बंद करके वो सारा ऑडियो सुन लो ताकि आप अपने माइंड को काम एंड पीसफुल रख सकते हो। And you can even gratitude while listening to the audio। Okay, so that is one thing, never forget। And the second thing, yes, so many people are saying I'm practicing gratitude daily। Sanjeev ji is saying, lot of people are saying that they practice gratitude every day। तो ये एक प्रैक्टिस खुद करो, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने फैमिली मेम्बर्स को सिखाओ, सबको ये प्रैक्टिस, सबको बोलना कि ये प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। हुआ नहीं हुआ एक बार चलेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस को नहीं भूलना, राइट? सो व्हेन यू गिव द सिग्नल ऑफ ब्लेसिंग्स टू द यूनिवर्स ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स विद
10 times more blessings. Okay, what else do we cover today? कल हमने goals के बारे में बात की. You all took some time to reflect and to find out what is it that you truly want in your life. क्या चाहिए आपको, और उसके लिए मैंने आपको कहा था वो कैसे मिलेगा. पहले ये लिखो आपको क्या चाहिए, और उसके बाद आपके गोल सेट करो कि आपको इमीडिएटली क्या क्या स्टेप्स लेने हैं. और गोल्स लिखने के लिए हमने कहा कि 2 चीज़ों का ध्यान देना है. सबसे पहले गोल्स नीड टू बी बैलेंस्ड एंड सेकंड इज गोल्स नीड टू बी स्मार्ट. ना बहुत सारे लोग गोल्स सेट तो करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग मुझे आके कहते सर मेरे गोल्स अचीव ही नहीं होते. मतलब छोटे छोटे गोल्स अचीव हो जाते हैं लेकिन बड़े गोल्स अचीव ही नहीं होते. तो व्हाट इज़ द रीज़न? वाई इज़ इट दैट आई एम नॉट एबल टू अचीव? आई पुट इन ऑल माई एफर्ट्स, आई डू ऑल माई हार्ड वर्क, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे गोल्स अचीव नहीं होते. तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो आई टेल देम देयर इज़ ओनली वन रीज़न, दैट यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ समवेयर. कुछ ना कुछ है आपके अंदर जो आपको रोक रहा है. जब भी हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, इनफैक्ट जितना ज़्यादा बड़ा लक्ष्य हो उतने ज़्यादा बड़े चैलेंजेस आएंगे. दैट इज़ समथिंग विच इज़ गिवन. ज़रूरी नहीं क्या है, बट जितने बड़े गोल सेट करेंगे उतने बड़े चैलेंजेस तो आने ही वाले. दुनिया में आज तक एक भी इंसान ऐसे ही कामयाब थोड़ी हुआ है. उनके लाइफ में भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए. Look at any successful people. They have failed multiple times. They've had several challenges in their life. But the quality that they had was, one is they never gave up. And they constantly learned on how to overcome those blocks that are stopping them from moving forward. कुछ तो ऐसा है जो उनको आगे बढ़ने से रोकता है. अब ये जो चीज़ें हमें रोकती है आगे बढ़ने से, इसको हम कहते हैं रोड ब्लॉक्स. समझो आप मुंबई से कार लेके निकल दो, दिल्ली जाना है आपको, और रोड में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ गए, तो इसको हम क्या कहते हैं? रोड ब्लॉक्स. वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है. इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य की ओर जाना तो है. वी ऑल एक्साइटेड अबाउट रीचिंग आवर गोल्स, बट समथिंग स्टॉप्स अस समटाइम्स टू अचीव आवर गोल्स. तो ये जो रोड ब्लॉक्स है वो 2 तरह के होते हैं. एक होता है एक्सटर्नल रोड ब्लॉक्स और दूसरा होता है इंटरनल रोड ब्लॉक्स. अब एक्सटर्नल रोड ब्लॉक्स वो चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती. जैसे फॉर एग्जांपल फिलहाल पूरा कोरोना वायरस का जो, दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, दैट इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, यू कांट हेल्प इट. इसी तरह गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, डॉलर का रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, डॉलर का रेट अप्रिशिएट हो गया, रुपी डिवैल्यूट हो गया, उसके वजह से इम्पोर्ट्स कॉस्टली हो गए, या फिर टीम मेंबर्स जो आपके थे सडनली छोड़ के चले गए, या फिर गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर कर दिया. एनी ऑफ दीज पैरामीटर्स विच आर आउटसाइड आर नॉट इन योर कंट्रोल, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल रोड ब्लॉक्स. या फिर आपको जिस क्वालिटी के स्टाफ चाहिए वो स्टाफ नहीं मिल रहे हैं, या फिर कैपिटल की कमी है, बिजनेस चलाना है, बड़ा करना है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है इनफ. ऑल दीज आर कॉल्ड व्हाट काइंड ऑफ रोड ब्लॉक्स? एक्सटर्नल रोड ब्लॉक्स. The second kind of roadblocks that we have are called internal roadblocks, जो हमें अंदर से रोकता है. अब कोई मुझे बता सकता है कि internal roadblocks किस तरह के हो सकते हैं? What are the different kinds of internal roadblocks that people have? अंदर से हमें क्या रोकता है? चलिए, let me listen to some answers. इंसान को अगर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है तो अंदर से उसको क्या रोक सकता है? बाहर की चीज़ें तो हमने बातें की, गवर्नमेंट पॉलिसीज, डॉलर रेट फ्लक्चुएशंस, कोरोना वायरस, दीज आर ऑल एक्सटर्नल रोड ब्लॉक्स. इंटरनल रोड ब्लॉक्स क्या हो सकते हैं? एनी आंसर्स? ओके, नॉट फीलिंग नॉट गुड इनफ. यस, जयश्री जी बोल रहे हैं नॉट फीलिंग गुड इनफ. That means low self-esteem. लो सेल्फ एस्टीम है तो हम आगे बढ़ने से रुक ही जाएंगे. यस, संजीव जी कहते हैं वेरी बिग थिंग दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इज फियर ऑफ फेलियर. मल्लिका जी सेज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. रमेश जी सेज लैक ऑफ बिलीफ इन सेल्फ. श्रवंती सेज
fear, not capable of doing it, lack of self-confidence, yes, fear of failure, scared of taking risk, doubts, not coming out of the comfort zone, a negative mindset, fear, old experiences, पुराने experiences जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, negative beliefs, negative thoughts, lack of confidence, confidence नहीं है आगे बढ़ने का, fear of failure, fear of getting stuck, negativity in the mind, excuses, lack of burning desire, अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही है, fear, hesitation, negativity, ownership नहीं है, emotional disturbances, मतलब माइंड बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, our own limiting belief system, लोगों की बातें सुन करके हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, lack of willingness to change, anger, jealousy, worry, fear, lack of faith, mind is not healthy, consistency नहीं है, lack of being time bound, that means हर चीज को डिले करते रहते हैं, procrastination, laziness, lack of clarity. अभी आप सोचिए बाहर की चीजें इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है कि अंदर की चीजें? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? रितु पगरिया जी सेज फैंटास्टिक, lack of discipline, beliefs which are already installed in our system earlier, no action. पांडुरंग जी says taking no action at all, खाली सोचते रहते, एक्शन नहीं लेते. तो अब मुझे बताइए कि आर द एक्सटर्नल रोड ब्लॉक्स मोर और इंटरनल रोड ब्लॉक्स आर मोर? एक्चुअली इंसान को क्या रोकता है, बाहर की चीजें या अंदर की चीजें? बताइए मुझे. What stops people from moving forward? Is it external roadblocks or more internal roadblocks? Yes, Ramesh ji, it's internal. देखो, बाहर के रोड ब्लॉक्स हमें रोकता ही है, लेकिन अगर बाहर की चीजें हमें रोक सकती तो दुनिया में एक भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाता. श्वेता says unforgive deservingness, मतलब I feel that I don't deserve good things in my life. Not feeling weak from inside. So perfect. जो चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो अंदर है, बाहर नहीं है. अगर बाहर की कोई भी चीज़ इंसान को कामयाब बनने से रोक सकती तो दुनिया का एक भी इंसान कामयाब नहीं होता, क्योंकि जितनी रुकावटें हमें आ रही है उतनी रुकावटें सबको आती है. तो इसका मतलब है कामयाब लोगों ने ये सारी रुकावटों को पार करना सीखा है. दे ऑल लर्न हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस एंड मूव फॉरवर्ड. तो हमें क्या करना है, बाहर की रुकावटों के साथ तो डील करना ही करना है, लेकिन सबसे पहले हमें अंदर की चीज़ों को डील करना है. और अगर हम अंदर की चीज़ों को निकाल पाए तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती अपने लक्ष्य को पाने से. बिकॉज हकीकत में अगर इफ देर इज वन पर्सन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स, हु इज दैट वन पर्सन? कौन रोक सकता है आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए? Is there anybody that can stop you from achieving your goals? Who is that one person who can stop you from achieving your goals? I'm just waiting for some answers. Ourself, absolutely, Pradeep. You're perfectly correct. हमें रोकता है अंदर की बातें, बाहर की चीज़ें हम ही अपने आप को रोकते हैं. कहीं ना कहीं हमारा विश्वास टूट जाता है, कहीं ना कहीं हमको लगता है ये हो नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मैं केपेबल नहीं हूँ, मुझसे होगा नहीं. So generally people blame the outside, but it is not the outside which stops us from moving forward. It is always our inside. और अंदर की चीज़ें हमें जो रोकती है, डर, चिंता, वरी, टेंशन, नेगेटिविटी, लैक ऑफ बिलीफ, ये सारी चीज़ों को हमें ओवरकम करना है ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाए. A person who is not stuck from within is a person who is known as unstoppable. What's the word? It's called unstoppable. मतलब एक बार इन्होंने सोच लिया कि मुझे पॉइंट बी तक जाना है, मुझे मेरे लक्ष्य तक जाना है,
फिर दुनिया की कोई भी ताकत उनको वहाँ जाने से नहीं रोक सकती. Nobody can stop them. That is the mindset they have. That is why they are able to achieve what they want to achieve. गांधी जी ने जब फ्रीडम के बारे में सोचा तो आपको क्या लगता है उनके लाइफ में परेशानियां नहीं आई होगी? डू यू थिंक ही डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस? Thousands, hundreds and hundreds of challenges and problems. Yet he never gave up because he always believed that he could make it happen. It was the burning desire, there was belief, and there was this ability to not get stuck from within. और अंदर से अगर उनको कोई रोक नहीं पाया तो बाहर की कोई भी ताकत इंसान को नहीं रोक सकती, अगर आपको अंदर से रोक नहीं सकता है तो. अब हाउ डू यू ओवरकम इंटरनल रोड ब्लॉक्स? देयर आर मेनी वेज. नेगेटिविटी को निकालने के लिए हम EFT यूज़ करें. ओके, इसको हम डिटेल में तो हम जितना हो सके हमने सेशन 2 और 3 में कवर किया था कि EFT के थ्रू हम नेगेटिविटी का काफ़ी सारा ख़त्म कर सकते हैं. रेगुलर यूज़ ऑफ EFT कैन मेक योर माइंड वेरी पॉजिटिव, बिकॉज रेगुलर यूज़ ऑफ EFT से क्या होता है, हमारा ब्रेन रीप्रोग्राम हो जाता है. और एक बार ब्रेन रीप्रोग्राम हो गया तो जो चीज़ें आपको पहले परेशान कर रही थी, जो चीज़ें आपको आज कल आपको मुश्किल दे रही थी, अभी आपको नहीं देगा. Sarita ji says, anyone who does your MPU course cannot be stopped. Yes, absolutely. Sarita ji, that's the goal of our Mind Power workshop, is to make you unstoppable. क्योंकि everything is in the mind. अगर यहाँ से निकाल दिया कचरा तो आपको कोई नहीं रोक सकता. Okay, so we were talking about how to identify those blocks. तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो अवेयर होना है. सी, देयर इज 3 ways टू रिमूव ब्लॉक्स. देयर इज 3 step प्रोसेस, आई वुड से 3 steps है. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या रोक रहा है. दैट इज नोन एज द अवेयरनेस. क्या हमें समझ में आ रहा है कि मुझे क्या रोक रहा है? ज़्यादातर लोग मुझे आके कहते हैं कि सर मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या रोक रहा है. सो द फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस. वॉट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम अचीविंग माई गोल? ओके. सेकेंड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग. एक बार आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ मुझे रोक रही है आगे बढ़ने से. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अंदर अवेयरनेस आती है कि मैं है ना हर चीज़ को डिले करते रहता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट, बाद में करूँगा, ये मुझे समझ में आ गया, तो सेकेंड स्टेप मुझे समझ में आएगा, दैट इज नोन एज अंडरस्टैंडिंग, कि ये डिले करने के वजह से हर चीज़ को मैं डिले कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ. एंड द थर्ड स्टेप इज रिकंडीशनिंग. मतलब अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना ज़रूरी है ताकि हम ये प्रोक्रेस्टिनेशन को पार करके हम आगे बढ़ सके. तो देर आर 3 steps इन चेंजिंग और ओवरकमिंग अ ब्लॉक. फर्स्ट इज कॉल्ड अवेयरनेस, सेकेंड इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, एंड थर्ड इज कॉल्ड रिकंडीशनिंग. रिकंडीशनिंग मतलब हम हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं. और जैसे हम माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करेंगे तो हमें रिजल्ट्स अलग मिलने शुरू हो जाएंगे. बिकॉज हमारा माइंड जो है एक कंप्यूटर की जैसा है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के जैसा है. सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग सही नहीं है या सॉफ्टवेयर सही नहीं है तो रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे. इसी तरह हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग अगर सही नहीं है तो हमें रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे. ओके, सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू अ फ्यू स्टेप्स. सबसे पहले अपने गोल्स एक बार आपने लिख दिए तो एक पेज के ऊपर एक ही गोल लिखो. Let's say you have 10 goals. So take 10 pages. On each page write down, on the top of the page write down your goal. कि मेरा ये गोल है. उसके बाद आप अपने आप से पूछो कि on a scale of 1 to 10, how much do you believe that you can achieve this goal? 10 मतलब 100% हो जाएगा, no problem. ये होकर ही रहेगा. 5 मतलब 50% चांसेस, शायद होगा शायद नहीं होगा. 5 के नीचे है दैट मीन्स बहुत डाउटफुल है कि ये गोल होगा. तो सबसे पहले आपके जितने भी गोल है उसके सामने एक नंबर डाल दो कि आपको कितना बिलीफ है कि ये गोल अचीव होगा. आपको लगता है 100 मतलब 7 के ऊपर होगा ना. अगर आपका नंबर 7 के ऊपर है और अगर मैंने आपको ये जो 21 दिन में सिखाने वाला हूँ या जो सीख चुके हैं उतना आप अप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 100%. इनफैक्ट इवन 6 के ऊपर होगा तो हो जाएगा. लेकिन 6 के नीचे है तो डाउटफुल है, तो हमें उन रोड ब्लॉक्स को भी दूर करना है. तो जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहले
हर पेज पे एक एक गोल लिखो, उसके सामने एक नंबर लिखो कि आप कितना उसको बिलीव करते हो, और उसके बाद अगर नंबर 6 के नीचे है तो अपने आप से पूछो, what is it that is stopping me from achieving this goal? Why do I not believe that it is possible? ऐसे क्या कारण है जिसके वजह से ये मैं नहीं कर, मेरी बिलीफ ये क्यों है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? What is the reason I don't believe this is possible? उसके सारे कारण लिख दो। हो सकता है कि आप ये मानते हो कि मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है, मेरे पास टैलेंट्स नहीं है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, सारे रीजंस लिख दो। और अब हमें क्या करना है, ये सारे रीजंस को पॉजिटिव में बदलना ज़रूरी है, क्योंकि माइंड में वो जब तक नेगेटिविटी है तब तक वो गोल अचीव नहीं होने वाला। सो वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे, इसमें बहुत सारे दूसरे टेक्निक्स भी है, लेकिन मैं आपको आज जो देर आर वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक्स अवेलेबल टुडे टू स्विच अराउंड द माइंड, ओके। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी सिंपल टेक्निक विच इज़ नोन एज द टेक्निक ऑफ एफर्मेशंस टू टर्न अराउंड द प्रोग्रामिंग इन द माइंड। तो सपोज आपका बिलीफ ये है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, इसलिए मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। अब आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अगर होगा माइंड की सोच, तो गोल कभी अचीव होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, एग्जैक्टली उसका जो ऑपोजिट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आई एम रियली कॉन्फिडेंट, बिकॉज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो व्हाट यू नीड टू डू, स्विच इट अराउंड, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ओके। लेकिन ये आई एम वेरी कॉन्फिडेंट सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत नहीं घुसेगा, उसको घुसने के लिए कुछ दिन लगते हैं। इट टेक्स अबाउट 21 days फॉर यू टू पुट इन साइड द सबकॉन्शियस माइंड। तो आपको क्या करना है कि जितने भी ऐसी बिलीफ्स है जो आप ये मानते हो कि हो ही नहीं सकता, उसको आप स्विच अराउंड करके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्रिएट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा स्टाफ जो है वो कोऑपरेट नहीं करता, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मार्केट की सिचुएशन बहुत ख़राब है। वो सारी चीज़ों को एग्जैक्टली ऑपोजिट स्टेटमेंट बनाइए। द मार्केट इज़ रॉकिंग, देयर इज़ इनफ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी, माई स्टाफ ऑलवेज कोऑपरेट्स विद मी, my staff is a super performer, all my staff members are super performers। जो आपको चाहिए वो स्टेटमेंट्स लिखो। देखो, अगर हमारे माइंड में नेगेटिव चीज़ें अंदर चल रही है तो हम बाहर से कितना भी पॉजिटिव होने की कोशिश करें, रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो ये जो सबकॉन्शियस लेवल, जो डीपर लेवल पे नेगेटिव चीज़ें हैं, उसको बाहर निकाल के पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसको डेली रेपिटेशंस करना है, ओके। So what I want you to do is to come up with a list of all those things that are negative in nature, which are stopping you from achieving your goal, convert it into a positive statement, a positive affirmation, and then repeat these affirmations every single day for 21 days. Okay? Every single day you're going to repeat these affirmations for 21 days. So for example, अगर आपको confidence बढ़ाना है, तो आप every single day at least 2 times a day you're going to repeat the statement, I am really confident, I am really confident, I am really confident, I am really confident। और फिर उसके साथ में सोचना भी है, I am really confident, I am really powerful, I can definitely achieve this goal। अगर सबसे पावरफुल करना है तो मिरर के सामने खड़े होके अपनी आंखों में देख करके बोलो, I am really confident, I am really powerful। अगर आप ये कहते हो कि मेरी मेमोरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट स्टेटमेंट क्या है, आई हैव एन एक्सेलेंट मेमोरी। तो आप मिरर के सामने देख करके बोलेंगे, आई हैव एन एक्सेलेंट मेमोरी, आई कैन रिमेंबर एवरीथिंग दैट आई वांट व्हेन एवर आई वांट टू रिमेंबर इट, ओके। माई स्टाफ इज ऑलवेज कोऑपरेटिव, द मार्केट इज रॉकिंग, द मार्केट इज बूमिंग, आई हैव ऑल द कैपिटल दैट आई नीड टू डू माई बिजनेस। अब ये स्टेटमेंट जो है आपका माइंड पहले शायद मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है, इट्स ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ। तो इनिशियली आपका माइंड उसको रिजेक्ट करेगा, लेकिन इसको अगर हम 2 बार करें, 2 times, सोने से पहले और उठने के बाद, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू योर एफर्मेशंस। आंखें बंद करके उस एफर्मेशन को दिल से बोलना, आई एम रियली कॉन्फिडेंट, यू नो, आई एम अर्निंग सो मच रुपीज पर मंथ, एवरी मंथ, my business is rocking, this is happening, I have so many wonderful people in my company, there are opportunities come to me every single day। इस तरह से आप जितने भी आपके important affirmations है उसका पूरा एक लिस्ट बनाइए affirmations का,
चाहिए तो उसको सारे रिकॉर्ड कर लो, अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करो, और सोने से पहले इन एफर्मेशंस को सुनते 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 सो जाइए। सुबह उठ करके वापस जैसे ही आप उठेंगे वापस एफर्मेशंस को सुनते 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 फिर उसके बाद आपको उठना है। तो 2 बार आप इस एफर्मेशंस को करेंगे तो ये सारे स्टेटमेंट सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएंगे। दे विल एंटर एंड दे विल गेट इंटरनलाइज्ड। सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर प्लेसिंग न्यू सीड्स इन द सबकॉन्शियस माइंड। हमने कहा था ना, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सीड्स कैसे इंस्टॉल करेंगे? थॉट्स, वर्ड्स, इमेजेस, फीलिंग्स, एक्शंस। थॉट्स, वर्ड्स, इमेजेस, फीलिंग्स, एक्शंस। जब आप एफर्मेशंस बोलते हो तो बेसिकली यू यूजिंग द सीड्स ऑफ वर्ड्स। शब्दों के द्वारा आप वो चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल कर रहे हो, राइट? आई एम रियली कॉन्फिडेंट, दिस इज अ वर्ड्स। शायद आप इसको आज नहीं मान रहे हो क्योंकि आज कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जब आप नए बीज को बोते हो, आई एम रियली कॉन्फिडेंट, आई एम रियली कॉन्फिडेंट, आई एम रियली कॉन्फिडेंट, और आप पानी इसका मतलब कि आप एक बार बीज बोने के बाद आप उसको रोज़ पानी देते हो, तो आप देखेंगे धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और 21 डेज में तो यू विल सी दैट यू विल बी ऑलमोस्ट रॉकिंग। ओके, so this is one of the simplest techniques to basically overcome anything that you have, any blocks that you may have in your subconscious mind. लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहले अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अगर मुझे पता ही नहीं मुझे क्या रोक रहा है तो मैं आगे उसको निकालूंगा कैसे? इसलिए हमें ये एक्सरसाइज को शांति से करना है। हर गोल को एक पेज पे लिखो और आंखें बंद करके अपने आप से पूछो, व्हाट इज़ इट दैट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम अचीविंग दिस गोल? ऐसा क्या है जो मुझे इस गोल को अचीव करने से रोक रहा है? और फिर जो भी आंसर्स आते हैं उसको आप लिखना शुरू करो, लिखो लिखो लिखो, और वो सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके एक एफर्मेशंस की लिस्ट बनाइए, और रोज़ इन एफर्मेशंस को सोते समय करना है, उठने के बाद करना है। इन दिस वे यू कैन एक्चुअली रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड विद इन 1 मंथ। अगर आप इसको 40 डेज कंसिस्टेंटली करते हो, you will see how a tremendous change can happen in your subconscious mind. Okay, so 40 days is considered to be ideal, लेकिन minimum is 30 days. तो इसको आप रोज करिए and then you will see that you will be able to bring about the change in your subconscious mind. Sanjeev ji says, how can one be aware of what is stopping me? Yes, that is an answer which can come only from within. तो जब, इसलिए मैंने आपको सर कहा कि आप आंखें बंद करके go into the alpha state, just relax yourself completely and then ask yourself a very deep question, that what is it that is really stopping me from moving forward? And then just wait for a few seconds and you will see suddenly some things will pop out from your subconscious mind. Okay, you're not good at this, maybe this is missing. ये चीज़ें आपके अंदर से ही आएगी, ये आवाज़ बाहर से नहीं आ सकती, ये हमेशा अंदर से आएगी। ओके, सो यू कैन सीक दोज आंसर्स फ्रॉम योर इनर गाइडेंस, राइट इट डाउन, कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड देन रिपीट देम एवरी सिंगल डे फॉर 30 days मिनिमम। ओके, यस, दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज टू ओवरकम योर ब्लॉक्स। इसको हम कहते हैं रिलीजिंग द ब्रेक्स। दिस इज ऑल्सो अ सक्सेस प्रिंसिपल। रिलीजिंग द ब्रेक्स मतलब आप अपनी कार चला रहे हो और कार चला रहे हो तो आप देख रहे हो कि कार इतना एक्सेलरेटर दबा रहा हूँ लेकिन कार आगे नहीं बढ़ रही है। थोड़ी देर में आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी हैंड ब्रेक ऑन है। अब हैंड ब्रेक अगर ऑन होगी तो क्या कार आगे बढ़ पाएगी? इम्पॉसिबल, इट्स नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। सो यू विल इमीडिएटली रिलीज द हैंड ब्रेक एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। इसी तरह लाइफ की गाड़ी भी, जब आप अपने गोल्स की तरफ जा रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि कुछ मुझे रोक रहा है, समथिंग इज स्टॉपिंग, अगर आप कुछ रोक रहा है तो उसको थोड़ा रिफ्लेक्शन करके क्या रोक रहा है मुझे, उसके पूरे लिस्ट बना करके उसको रिमूव करेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे ना। दैट इज वाई एफर्मेशंस इज नोन एज रिलीजिंग द ब्रेक्स। ओके, इट इज कॉल्ड रिलीजिंग द साइकोलॉजिकल ब्रेक्स। हमारे अंदर कितने सारे साइकोलॉजिकल ब्रेक्स हैं, इनको सारे ब्रेक्स को हमें निकालना है। ओके, सो
Do you think this was a valuable tip for all of you? कम से कम एक चीज के साथ ट्राई करिए. ओके, एंड इफ यू फील लाइक राइटिंग इट, यू कैन राइट इट एवरी डे. जितने भी एफर्मेशंस आप इसको एक बार 2 बार लिखिए. एक बार लिखेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन उसको मन में करेंगे तो भी चलेगा. ओके, सो मनीष सेज यस सर, ऑसम टिप्स. संध्या जी सेज यस. सुनीता जी सेज मोस्ट वैल्यूएबल. गीता says yes sir. Akshata says yes very much. Awesome guidance. Very good. And my suggestion to all of you is also read this book called The Power of Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. उसमें Dr. Joseph Murphy he is the pioneer in the work of subconscious mind. सबसे पहली अगर कोई ज़बरदस्त बुक किसी ने लिखी हो सबकॉन्शियस माइंड पे तो वो है डॉक्टर जोसेफ मर्फी. उनका बुक का नाम है द पावर्स ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. तो इस बुक को पढ़िए. व्हाट ही हैज़ डन इज ही हैज़ रिटन एफर्मेशंस फॉर ऑल एरियाज ऑफ लाइफ. हेल्थ के एरिया में किस तरह के एफर्मेशंस यूज़ करने चाहिए, रिलेशनशिप्स के एरिया में कैसे करने चाहिए, पैसों के मामले में अगर प्रॉब्लम है तो किस तरह के एफर्मेशन यूज़ करने चाहिए, उन्होंने सारा डिटेल्स में दिया है. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बुक जो एफर्मेशंस के लिए बहुत ही यूज़फुल है वो है लुइस हे की बुक. लुइस हे इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई टीचर्स. सो शी हैज़ रिटन दिस बुक कॉल्ड यू कैन हील योर लाइफ. ओके, व्हाट इज़ द नेम? यू कैन हील योर लाइफ. दैट इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल बुक वेयर शी टीचेज यू हाउ टू यूज़ एफर्मेशंस टू ओवरकम ब्लॉक्स. ओके, अब एफर्मेशन से क्या होगा? सरफेस लेवल ब्लॉक्स निकल जाएंगे. जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, जो बहुत गहराई में अंदर डीप रूटेड ब्लॉक्स जो है वो एफर्मेशंस को निकालने को बहुत टाइम लगता है. सो डीप रूटेड ब्लॉक्स को निकालने के लिए देयर आर एडवांस टेक्निक्स. सो फॉर दैट जनरली इट इज़ डिफिकल्ट टू टीच हियर. फॉर दैट इफ यू वांट यू कैन जॉइन वन ऑफ आवर वर्कशॉप्स वेयर यू कैन लर्न हाउ टू ब्रेक थ्रू एनी लिमिटेशंस, एनी बिलीव्स दैट यू मे हैव इंटरनली. उसको बाहर कैसे आइडेंटिफाई करना वो भी आप वर्कशॉप में सीख सकते हो. So those are for deep rooted beliefs. लेकिन majority of the beliefs are not deep rooted. Okay? So आपका 60 to 70% प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे. उसके अलावा मैंने एक बार जो गूगल ड्राइव शेयर किया था उसमें एक मैंने टूल शेयर किया था जिसका नाम था प्रेयर ऑफ माइंड. वो प्रेयर ऑफ माइंड भी इतना पावरफुल है कि अगर आप उसको रोज़ सुनते रहोगे तो आपके बिलीफ सिस्टम्स में चेंज आना शुरू हो जाएगा. ओके, यू विल सी दैट योर बिलीफ सिस्टम्स विल बिकम वेरी पॉजिटिव. You'll be very positive and charged up to achieve things. So prayer of mind is also a series of very very powerful and positive affirmations जो आपके subconscious mind की programming को change कर सकता है. Okay? So what are the 3 things I suggested to you? Use affirmations. Second is read The Power of Subconscious Mind. Read You Can Heal Your Life and listen to Prayer of Mind. और ऑब्वियसली यू नीड टू हैव योर गोल्स. सारे पेजेस पे गोल्स लिखो, आइडेंटिफाई करो व्हाट आर द ब्लॉक्स एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन द ब्लॉक्स. कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि यू नीड हीलिंग. पास्ट की चीज़ें इतने परेशान करती है कि उनको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे निकालें. तो इसके लिए यू मे थिंक ऑफ यूजिंग सम थेरेपी, यू नो, बिकॉज अगर हमें पास्ट की चीज़ें बहुत ही परेशान कर रही है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो you must think about taking some therapy work. Okay, therapy work is very simple. I have like 124 coaches. Anybody of you to overcome challenges and problems and all of that. वो आपको help भी करेंगे identify करने के लिए. तो these people help you to actually overcome those blocks through techniques. Okay, great. So now time to do meditation. It's 10:15. And tomorrow we are starting our Mind Power workshop. It's a full house. So thanks to all of you. We have a lot of people from the current people who are viewing. There are a lot of people who have joined the workshop. So thank you so much everybody.
द प्रेयर ऑफ माइंड आई विल सेंड यू अ लिंक वंस अगेन, ओके। अगर किसी के पास मिसिंग है या नहीं है तो मैं वो लिंक वापस भेज दूंगा, फेसबुक पे शेयर करूंगा ताकि आप उसको यूज़ कर सको। यस जयश्री जी, आई विल पुट इट अप अगेन ऑन फेसबुक। या चलिए, सो लेट्स बी रेडी फॉर द मेडिटेशन। आज हनुमान जयंती है and Hanuman ji represents power, strength, courage, and we can definitely pray to God for giving us more strength, courage and power to deal with the situation that we have and not allow our minds to get weak. Hanuman ji represents strength. Okay, so the color red is basically the color of our Mooladhar chakra, जो हमारा रूट चक्र है, and root chakra is the one which is basically the one which indicates power. अगर रूट चक्र में प्रॉब्लम है तो इट इंडिकेट्स फियर, कहीं ना कहीं वी आर टू मच फियर, टेंशन, एंग्जाइटी, वरी. व्हेन द रूट चक्र इज स्ट्रांग, you are basically a powerful person. You're not worried about things which are happening outside. You're always moving forward in life. Okay. Yes, Shaista has already shared. You can check up. She has shared the link for prayer of mind, so you can download from there. Okay. Great. Let us all sit in the relaxation position. Make sure your back is well rested. Spine is straight. Hands and legs are not crossed. Gently close your eyes and start taking deep, long breaths. And as you take deep, long breaths, you allow yourself to go deeper and deeper and deeper into relaxation. With every inhale, you take in love, joy, peace, and serenity. And with every exhale, you let go of all the tensions, all the worries and all the anxieties from the system. जैसे आप सांस बाहर निकालते हो तो आपके अंदर जो भी तनाव है, जो भी चिंताएं हैं, वो सारी चीज़ें आपको छोड़ के जा रही हैं. Now visualize that a beautiful wave of relaxation is entering from the top of your head and it is covering your scalp area, covering your forehead, covering your temples. This beautiful wave of relaxation is passing through the cells, every single cell of your scalp area, your forehead, your temples, and as it passes through every cell, it is calming down every cell and relaxing every cell, covering your eyes, all the parts around the eyes, covering your nose, your ears, your lips, covering your chin area, going further down, covering your neck area, your shoulder area, going further down, covering your chest area, your abdomen area, your hands. महसूस करिए कि जैसे जैसे रिलैक्सेशन का वेव आगे बढ़ रहा है, वो सारे पार्ट्स एकदम ही रिलैक्स हो रहे हैं. Going further down, covering your waist area, and slowly and steadily covering your entire legs. Visualize that the beautiful wave of relaxation is passing through every single cell of your body, passing through 50 trillion cells. And as the wave passes through every cell, it removes all the negativity, removes all the stress, worries, tensions and anxieties, and it is calming down every single cell of your body.
Now your entire body is completely relaxed. You may want to scan your entire body. पूरे बॉडी को एक बार स्कैन कर लीजिए और नोटिस करिए कि अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी तनाव है तो उस पार्ट पे ध्यान दे करके धीरे से बोलिए रिलैक्स, and you can feel that part of the body relaxing. And now that your entire body is relaxed, we will now proceed to relax the mind. To relax the mind, I'm going to count down from 10 to 1. And as I count down from 10 to 1, with each count, you will go deeper and deeper and deeper. You will go 1,000 times deeper into your subconscious mind. And at the count of 1, you will reach one of the deepest levels of your subconscious mind. So let us begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. You have now reached one of the deepest levels of your subconscious mind. आप अपने अर्ध जागृत मन के एक बहुत ही गहरी अवस्था में पहुंच चुके हो. You may now transport yourself to one of the most beautiful places on planet Earth. अपने आप को एक बहुत ही सुंदर जगह में ट्रांसपोर्ट कर लीजिए. अब आप अपने आप को उस जगह में पाते हो और जैसे आप अपने आप को उस जगह में पाते हो तो आपका मन और भी शांत हो जाता है. You can feel that beautiful place. You can feel the warmth of the sunlight. उस गर्माहट को महसूस करिए आपके बॉडी के सेल्स के ऊपर. You can feel it on your hands, your legs. Feel the cool breeze on your face. आपके फेस पे ठंडी ठंडी हवा को महसूस करिए. Hear the birds chirping in the sky. ध्यान से सुनिए पक्षियों की आवाज. Hear the sound of the waterfall. And sense the fragrance of the flowers around you. And as you experience this beautiful place, your mind becomes more and more peaceful. At this stage, both your body and your mind are now completely relaxed. You are now in the deep alpha state of mind. The alpha state of mind is a highly beneficial state of mind. Whatever you visualize and affirm in this state of mind comes to physical reality in your life. इस अवस्था में आप जो भी मनोचित्रण करते हो और जो भी स्वसूचन करते हो वो चीज़ें आपके जीवन में सच बनकर ही रहती है. Now, once again, notice that you are in this beautiful place. और आप देखते हो कि आपके परमात्मा आपके सामने ही है. God is in front of you. So first you are expressing your deepest gratitude to God. Thank you God for giving me one more day. आज का दिन तूने मुझे दिया so that I can serve my family, my community and the world at large.
Thank you for giving me one more day. Thank you, God, for my body and for my mind. Because of these two very, very powerful resources, I am able to do all my work. I am able to experience life. I am able to live my life to the fullest. Thank you, God, for a very healthy and a fit body and a very powerful mind. Thank you, God, for all the abundance in my life. First of all, starting with all the beautiful people in my life, starting with my parents. I remember how much they've done for me all their life. So I'm truly grateful to both my parents. Thank you, God, for my teachers and my gurus. So many people in my life who have taught me so many things and made me the person I am today. So I'm truly grateful to my gurus, to my teachers, जिन्होंने मुझे राह दिखाई, नॉलेज शेयर किया मेरे साथ. And I am what I am because of them. Thank you to my wonderful family, starting with my spouse, who's always there to support me through the journey of life, to love and support me. To my children, who add so much meaning to my life. अपने बच्चों के चेहरों को याद करिए and see it is them for which add so much meaning into your life. And thank you for all the other people in my life, my team members, my staff at office, all the other people who supply me things on a daily basis, my customers, my vendors, all the people who have come into my life. I'm really grateful to each one of them. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the abundance in my life. मेरे लाइफ में जो भी समृद्धि है उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ मैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द एयर, द फूड, द वाटर, air, the house that I live in, all the furniture, the appliances which are making my life so easy to live. I know there are millions of people on this planet who don't even have a roof above their heads. So I am so grateful that I have all this. To my car, which takes me from one place to another without complaining. To my office. To all the other technology. My phone, which helps me to stay in touch with my loved ones. All the money, the savings, the bank balance, the investments. Thank you, thank you, thank you for all this abundance in my life. You are deeply grateful to God for all what is there in your life. Now we'll seek forgiveness from God for any mistakes that we have committed. Knowingly, unknowingly, directly, indirectly. God से हमें माफ़ी मांग. Dear God, if I have hurt anybody or if I have hurt Mother Nature directly, indirectly, unknowingly in this life or any of my past lives, if I have hurt anybody or if I have hurt Mother Nature through my thoughts, words and deeds, please, really, really sorry. Please forgive me. God is very gracious. God is always loving, loves all His children. So you can see a beautiful white divine light coming from God. This is a divine healing light which is coming from God, and it is covering the entire planet, covering all the 7 billion people on the planet.
Visualize that this light is also covering you up fully, passing through your entire body, and it is healing your entire system at all levels. And it is removing all those past karmas, washing away all those past karmas, and freeing you up from all those karmas which are creating a problem today. Visualize that this is happening for all the 7 billion people on the planet. जितने भी लोग हैं हमारे इस पृथ्वी पे, वो सारे लोगों को ये लाइट पुराने कर्मों से मुक्त कर गई है. And all those karmas which are released are going and entering into the black hole in the universe. Also visualize that the coronavirus, wherever it is on this planet, is getting dissolved in this white light. It is merging with the white light, and it has no more power, and it is not affecting anybody at all. It's completely harmless now. और ये beautiful divine healing light is covering our entire planet and maintaining and keeping the planet always safe and protected. So we are very grateful to God for His divine grace, His mercy. Now let us send out our love and healing energy and appreciation and gratitude to all those people. वो सारे लोगों को हमें भेजना है जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं. Send it out to all those doctors, nurses, paramedical staff, all the support staff who's treating so many patients across the globe. To all those people who are making sure that we are receiving our essential supplies, milk, vegetables, fruits, grains, दिन रात मेहनत करके ये लोग आपको ये पहुंचा रहे, तो ये सारे लोगों को थैंक यू. Deep appreciation for all these people. Thank you, thank you, thank you. Now, take a moment to visualize your most important goal. ऐसा विजुलाइज करिए कि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल है वो अचीव हो रहा है आपके सामने. और बिकॉज आपका गोल आज ये सच हो चुका है, आप बहुत ही खुश हो, तो उस खुशी के फीलिंग्स को महसूस करिए. फील द फीलिंग्स ऑफ जॉय, ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ पीस, ऑफ फुलफिलमेंट. Yes, I have achieved the goal. And you are very grateful to God that you have achieved this goal. Thank you so much, God, for making this goal happen. Thank you, thank you, thank you. इस गोल को पूरी तरह से विजुलाइज करिए, फील करिए कि वो सच हो चुका है. Very good. Now we're going to visualize that our entire world is now back to normal. So visualize करिए कि सुबह का समय है, अभी अभी आप उठे हो, और आज आपके माइंड में एक फीलिंग आ रही है कि समथिंग इज ब्यूटिफुल टुडे. आज का दिन कुछ ज़बरदस्त है. यू कैन सेंस द वाइब्रेशंस इन द एयर. Suddenly the doorbell rings. You go and fetch the newspaper. न्यूज़पेपर पे आप हेडलाइंस देखते हो, तो आप हेडलाइंस को देख के नाच उठते हो, झूम उठते हो. You're extremely happy. The headline says, finally the world is back to normal. Coronavirus is completely gone. Completely eradicated. तो आप ये न्यूज़ पढ़ के बहुत ही खुश हो रहे हो. आपके फैमिली मेम्बर्स को आप ये न्यूज़ दे रहे हो तो वो भी बहुत खुश है. और उनकी खुशी को, उनके चेहरे को देख के आप कह रहे हो कि अपने मन में ही सोच रहे हो कि थैंक यू गॉड कि वी वर एबल टू गो थ्रू सच डिफ़िकल्ट टाइम्स. माई फैमिली इज सेफ, दे आर ऑलवेज हेल्दी, दे आर वेरी फिट. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गॉड
that we've been able to go through this journey. और उतने में आप अपनी सोसाइटी में चारों ओर आवाज़ सुन रहे हो, सब लोग, देयर आर बेल्स एंड विसल्स, जोर जोर से लोग थालियां बजा रहे हैं, तो सबको पता चल गया है और सब लोग बहुत ही खुश है. देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द एयर that finally we are out of one of the biggest challenges that we have faced in a long time. आप बहुत ही एक्साइटेड हो क्योंकि आज ऑफिस जाने का है, बहुत दिनों गए नहीं हैं, तो आप पूरी तरह से रेडी हो रहे हो, आपके बच्चे भी रेडी हो रहे हैं टू गो टू स्कूल और कॉलेज और देयर जॉब्स. और जैसे आप बाहर निकलते हो, जितने भी लोगों से आप मिलते हो, सबसे पहले सबके चेहरे पे खुशी है, एक अलग वाइब्रेशन है, एक अलग फील है. देयर इज मोर लव, मोर जॉय, मोर पीस, मोर कंपैशन इन द एयर, एंड यू कैन सेंस अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड which is full of love, joy, peace, compassion, helping one another. जितने भी लोग मिल रहे हैं आपको बहुत ही अलग लग रहे हैं, और आपको ये सारी चीज़ें देख के बहुत खुशी हो रही है. एंड यू आर वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट डियर गॉड, इन स्पाइट ऑफ गोइंग थ्रू सो मेनी चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, वी हैव नाउ इमर्ज्ड टू बी अ मच मोर ब्यूटिफुल वर्ल्ड. हमारी दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बन चुकी है. इट इज ऑलमोस्ट लाइक सत्युग इज कमिंग बैक अगेन, हेवन ऑन अर्थ. And you're very grateful to God for this transformation of the planet. Everybody is more respectful, respecting one another, respecting the other species, the living beings in the planet. And looking up in the air, you shout out to God that thank you, thank you, thank you, God, for helping us go through this journey and for creating such a beautiful, amazing new world. Thank you, thank you, thank you. Wonderful. Now we'll come out of the alpha state. और उसके लिए मैं 1 से 10 की गिनती करूँगा, और जैसे मैं 10 पे पहुँचूँगा और आप अपनी आंखें खोलोगे, तो आप पूरी तरह से फ्रेश होंगे, डीपली रिलैक्स्ड, फीलिंग काम, फीलिंग पीसफुल, फीलिंग जॉयफुल, एंड नाउ रेडी टू टेक अ ब्यूटिफुल नाइट्स स्लीप. स्टार्टिंग विद 1, धीरे धीरे बाहर आना शुरू करिए. 2, 3, 4, coming out slowly. 5, 6, slowly coming out. 7, 8, 9. You may please rub your hands together. दोनों हाथ को रब करिए. Put them on your eyes. And 10. Slowly take your hands off your eyes. And whenever you're ready, you may slowly and gently open your eyes. And as you open your eyes, you're calm, you're absolutely peaceful, feeling joyful, deeply relaxed, feeling much better than before. Wonderful. Thank you, everybody. Thank you so much for being here this evening. Hi, Parag. Nice to see you. Parag Raut. He's my classmate from college. So many nice people here. Deep. Thank you, thank you, thank you, everybody. How is everybody feeling? And what did you learn today? Anita ji saying, thank you, sir.
क्या सीखना है आपने तुझे आज? आज क्या सीखा? कौन से ब्लॉक्स को ओवरकम करना है, एक्सटर्नल या इंटरनल? और हमने कौन सी टेक्निक सीखी उसको ओवरकम करने के लिए? वेरी गुड पांडुरंग जी, नीलेश, एवरीबडी सेइंग थैंक यू, सुनीता जी सेइंग थैंक यू, पूजा सिंह जी सेइंग थैंक यू, ब्लेस्ड, फीलिंग ब्लेस्ड, मोना जी सेइंग थैंक यू, रमेश is saying thank you, Deepak ji saying feeling very peaceful, very happy. Very good, awesome. Thank you so much. Thank you so much, everybody. Yes, we have to use affirmations to remove internal blocks. Sunita ji, correct. We have to remove the internal blocks. एक्सटर्नल ब्लॉक्स तो इंटरनल निकल जाएंगे तो बाहर के ब्लॉक्स को निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा. रितु जी सेज फीलिंग एनर्जेटिक. देवेंद्र says feeling very awesome. Nishad is extremely happy. Sushmito ji saying pleasant and happy. Sanjay is saying awesome feeling. Thank you so much, guys. So we'll meet tomorrow. Same time, 9:30. Jayashree ji is saying feeling rejuvenated. Padmaja is saying feeling calm. Yes, everybody is capturing the learnings for today, which is very nice. So thank you so much, dear friends. I will see you all tomorrow at 9:30 sharp. It's going to be day 16. And we look forward to one more session of learning. Okay? Sneh is saying recharging again. Thank you so much. I'll let you all go for a beautiful night's sleep. Sleep well and see you tomorrow. All the best. Bye-bye.